Good morning students. Our today topic is types of redox reaction. So there are basically four types of redox reaction. Combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, and disproportionation reaction. Let's discuss these four types of redox reaction one by one. Our first redox reaction is combination reaction. So what do you mean by combination reaction? Combination reaction, as the name indicates, in which two or more reactants combine together and converted into a single product. जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन करना. फॉर एग्जांपल, when magnesium react with oxygen, then it is converted into magnesium oxide. Now here magnesium metal react with oxygen gas. So we have two different reactants, and after combination they are converted into a single product, that is magnesium oxide. So this is combination reaction. Now let's check whether this combination reaction is a redox reaction or not. We check reaction by their oxidation number method. Now we know that in any elemental or molecular form oxidation number always 0, and in combining form oxidation number of magnesium +2 and oxygen -2. Now look at in this reaction, magnesium increases their oxidation number from 0 to +2, and in case of oxygen there is decrease in oxidation number from 0 to -2. So we can say that oxygen undergo reduction and magnesium undergo oxidation. ठीक है. अब यहाँ पे we know that redox reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. So in this reaction magnesium undergo oxidation whereas oxygen undergo reduction. So this combination reaction is a type of redox reaction, or we can also say that it is a combination redox reaction. The question arises, are all the combination reactions are redox reaction or not? So always remember, all combination reactions are not redox reaction. सभी combination reaction redox reaction नहीं होगी. जनरली वही combination reaction रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिसमें कोई भी एक रिएक्टेंट अपनी एलिमेंटल या मोलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ठीक है. हम रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वन रिएक्टेंट शुड बी प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल और मोलिकुलर फॉर्म. मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट एटलीस्ट एक एलिमेंट की 0 होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का केस किया है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर इन देयर एलिमेंटल फॉर्म. The next, when nitrogen react with hydrogen, then it gives formation of ammonia. So here nitrogen and oxygen. So here nitrogen and hydrogen are in their molecular form oxidation state on nitrogen and hydrogen 0, and in case of ammonia charge over nitrogen -3, hydrogen show oxidation state +1. So nitrogen decreases its oxidation number from 0 to -3. So in this equation nitrogen undergo reduction and hydrogen changes its oxidation state from 0 to +1. So hydrogen undergo oxidation. So this is a type of redox reaction. And if we take an example in which all the reactants are in their compound form. ठीक है. यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट एलिमेंटल या मोलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है.
reaction of calcium oxide with water. In case of calcium oxide, oxidation number over oxygen -2 and calcium +2. In case of hydrogen, oxygen पे charge -2, hydrogen show oxidation number of +1. Similarly, in case of calcium hydroxide, simple ionic compound है तो calcium charge +2, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1. अगर आप इस इक्वेशन में देखिए, कैल्शियम के ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम बोथ इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट फॉर्म. रिएक्टेंट में भी कैल्शियम +2 स्टेट में है, प्रोडक्ट में भी +2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, दैट इज -2, -2. तो यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ. तो यहाँ पे ना तो कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, ना ही रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ. दिस इक्वेशन इज सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वन एलिमेंट इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन नंबर, तो अनदर एलिमेंट डिक्रीज देयर ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट. इज इट क्लियर? अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, दैट मींस द रिएक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर है? तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म. नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. नाउ डीकंपोजिशन मींस ब्रेकडाउन. कॉम्बिनेशन में ऐड हो रहा था, डीकंपोजिशन में ब्रेकेज होगी. तो डीकंपोजिशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ combination in which a reactant decompose to give multiple products. यहाँ पे भी वही सेम केस आ जाएगा. All the decomposition reactions are not redox reaction. Only those decomposition reactions are behave like redox reaction in which one of the product present in its elemental or molecular form. ठीक है, अगर कोई भी जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एटलीस्ट वन प्रोडक्ट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, तभी रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होगी. फॉर एग्जांपल, ऑन डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इट प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. So let's check whether this equation is redox reaction or not. Let's write their oxidation number in water. Hydrogen show oxidation state +1, oxygen -2, and in molecular form, hydrogen and oxygen give oxidation number 0. So look at here, hydrogen decreases oxidation number from 1 to 0. So here water undergo reduction, and oxygen increases oxidation number from -2 to 0. So here water also undergo oxidation. यहाँ पे water का oxidation भी हुआ है और reduction भी. So this type of decomposition reaction is named as redox reaction. क्लियर है ये? और अगर हम कोई ऐसी रिएक्शन ले जिसमें कोई भी प्रोडक्ट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, like calcium carbonate on heating produce calcium oxide plus carbon dioxide. Now check whether this reaction is a redox reaction or not. Write down oxidation number in case of calcium carbonate. Calcium +2, oxygen की general oxidation state -2. Let's check what is the oxidation number of carbon. जिसका कैलकुलेट करना उसको x कंसीडर कर लो. कैल्शियम 2 है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट. 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 3 पे कितना चार्ज आ जाएगा? -6. ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड है तो चार्ज 0. तो x + 2 - 6, x - 4 is equal to 0. तो x 4. Here oxidation state on carbon remain +4. In case of calcium oxide, calcium shows oxidation number +2 and oxygen -2. कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पे स्टेट -2. 2 ऑक्सीजन है तो 2 पे -4 हो जाएगी. तो कार्बन का क्या बनेगा? x - 4 is equal to 0. कार्बन shows oxidation number +4. अब यहाँ पे देखिए, कैल्शियम ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम बोथ इन प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट साइड. +2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन -2. तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ना किसी ने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, ना ही किसी का डिक्रीज हुआ. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. इज इट
यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेंगे और सेकंड सॉल्ट सॉल्यूशन. So in this type of displacement reaction, one element displaces another element from its solution. A displace B from its salt solution. क्लियर है ये? तो अब ये आपका A और B एलिमेंट है, ठीक है. अब एलिमेंट आपका मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है. तो इसके बेस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन non-metal displacement reactions. So first type is metal displacement reaction in which both A and B represent metal. Like when zinc react with copper sulfate. So here zinc and copper both are metal. So in this type of reaction, a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. Now we know that zinc is more reactive than copper, so zinc easily displaces copper from its salt solution. So generally displacement reaction are always redox reaction. Displacement reaction में अगर हम यहाँ पे देखें जिंक एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिंक सल्फेट में जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 एंड इन एलिमेंटल फॉर्म कॉपर से ऑक्सीडेशन स्टेट 0. तो here zinc undergo oxidation by the loss of 2 electron and copper undergo reduction by the loss of 2 electron. जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 इंक्रीज हुआ, दैट मींस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए. कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 डिक्रीज आया, दैट मींस कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया. इज इट क्लियर? सो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर जनरली रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल अपने एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा. अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन मोर रिएक्टिव जो हम एलिमेंटल फॉर्म में ले रहे हैं दैट इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपैरिजन टू द मेटल व्हिच इज प्रेजेंट इन इट्स सॉल्ट फॉर्म. ठीक है, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि मेटल की रिएक्टिविटी हाई है या लो? दैट इज फ्रॉम रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज आपने 10th क्लास में भी स्टडी की थी, वही आ जाएगा ऑलमोस्ट. पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. ठीक है, एज वी मूव डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस. ठीक है, जैसे जैसे हम पोटेशियम टू प्लेटिनियम मूव करेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी. So the matter which is present above the reactivity series can able to displace matter which is present below reactivity series. Is it clear? और हमें पता है जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना. लाइक जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का हमने एग्जांपल लिया, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई 0 to +2 में कन्वर्ट हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है दैट ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, जितना ज्यादा रिएक्टिविटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हाई होगी और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. सेकंड वन इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब आपका जो ए और बी एलिमेंट है दे इनमें से कोई भी एक एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी. One element must be a non-metal. ठीक है, for example, when fluorine react with water. So as fluorine is, so in this equation fluorine is non-metal and oxygen is also a non-metal, and fluorine is more reactive than oxygen. Fluorine की electronegativity high है, so fluorine can easily displace oxygen from water and itself make bond with hydrogen. Fluorine ऑक्सीजन को easily displace कर देगा और खुद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड में कन्वर्ट होगा. Is it clear?
तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, वाटर में ऑक्सीजन का -2 हाइड्रोजन +1, HF फ्लोरीन -1 हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म 0। ठीक है, नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। फ्लोरीन decreases oxidation number from 0 to -1, that means fluorine undergo reduction, and oxygen increases oxidation number from -2 to 0, so we can say that water undergo oxidation. So this is a type of redox reaction. Is it clear? Non-metal displacement redox reaction. Is it clear? Now the fourth one is disproportionation reaction. Now disproportionation reaction is a reaction in which same compound undergo oxidation as well as reduction. ठीक है, अगर रिएक्शन में एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है और उसी की रिडक्शन भी हुई है, that type of reaction is named as disproportionation reaction. अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी है? इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन में डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा if the element gives at least 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए एलिमेंट की, और वेरिएबल में भी एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड पॉसिबल हो उसके, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर पाएगा। 3 के लिए एक जो उसकी ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, और जब रिड्यूस्ड होगा तो उससे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखता हुआ एलिमेंट। इज इट क्लियर? सो एलिमेंट शोज एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल, when chlorine react with sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, hot and concentrated, then it is converted into chloride ion, perchlorate ion and water. तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म है 0, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जनरली कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड में सिंपल ऑक्साइड में ऑक्सीजन हमेशा -2 ही शो करेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो करेंगे अगर एक साइड वो कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है और सेकंड अपोजिट साइड एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, ताकि वहां से 0 से चेंज होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोराइड आयन -1 इन केस ऑफ परक्लोरेट आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। अगर हमें क्लोरीन की नहीं पता यहाँ पे क्या है तो हम X कंसिडर कर लेंगे। ऑक्सीजन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 3 है कंपाउंड, 3 ऑक्सीजन है, तो -6 इज इक्वल टू -1। सो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +5, हाइड्रोजन -1 एंड ऑक्सीजन -2 इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आएगा और कहाँ पे डिक्रीज आएगा। क्लोरीन changes its oxidation number from 0 to -1, 0 to -1, that means decrease in oxidation number. So here chlorine undergo reduction and oxygen का तो सेम ही है -2 हाइड्रोजन +1 और जब परक्लोरेट आयन क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर है +5, तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का ही रिडक्शन। इन रिडक्शन क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन and in oxidation chlorine gas is converted into perchlorate ion. Is it clear? तो सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, उसी का रिडक्शन हुआ, so this is a type of disproportionation reaction. Hydrogen peroxide on decomposition produced water. So here hydrogen के ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 है,
peroxide में ऑक्सीजन give oxidation state -1, in water oxidation state of oxygen -2 and in molecular form 0. तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन -1 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, दैट मीन्स हाइड्रोजन peroxide undergo oxidation, and -1 to -2 there is decrease in oxidation state, that means हाइड्रोजन peroxide undergo reduction. यहाँ पे ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हुआ और डिक्रीज भी हुआ. सो व्हेन सेम स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दैट इज नेम्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है. और सिमिलरली अगर इस पे क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू जस्टिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, तो जस्ट हम उसको चेक करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट, और आपको ये चेक करना है अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का इंक्रीज हुआ, दूसरे का डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन. इफ देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, देन द रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन. आई होप you clear all the type of redox reaction and how to classify that whether a given reaction is a type of redox reaction or not. Thank you and have a nice day.